Hello everyone. As you know that I am doing Indian Polity by M. Lakshmikant. We are dealing chapter number 1. This is the part 6 of chapter number 1. Okay, which title is historical background. Okay, so I have already completed 5 parts for this chapter. So I think I will take 2 or 3 more parts to complete this chapter. Okay, so if you have not watched the previous parts, please watch that as well, because it will give you the idea of historical background. Okay, so I'm considering M. Lakshmikant book. As you know that those who are preparing for civil services, you know that this how important this book is. That so that's why I have considered this book, and I will complete the entire book. Okay, and the entire text which is given in the book. Okay, so after watching, you will be able to know what is given in the Indian polity, and I hope if you're watching once, it is not required to read the book again, because the entire text which is given in the book that will be covered in this lecture series. Okay, so let's start the part 6 of this M. Lakshmikant. Okay, fine. Okay, so earlier we have seen lot of acts that that has been passed by Britishers. So this is the in this video we will deal only one act, which is Government of India Act 1935. Since this act has lot of provisions, so I have decided to cover in one video only, because then we will see in comprehensive way. Okay, so anyway, we'll see what is given in this act of 1935. देखिए, जो हमारा अभी प्रेजेंट टाइम का कॉन्स्टिट्यूशन है, वो भी उसका काफ़ी मेजर पार्ट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है. तो इस वजह से ये जो पार्ट है ये काफ़ी नॉट पार्ट दिस एक्ट काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है. ओके, सो आफ्टर सीइंग दिस यू विल कम टू नो अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, तो आप बोल सकते हो कि हाँ, ये वाला पार्ट 1935 वाले एक्ट से लिया गया है, ये वाला पार्ट वहाँ से लिया गया है. Okay, so anyway, we'll see this. So we'll read one by one and we'll try to understand. Okay, so the act mark a second milestone towards the completely responsible government in India. ठीक है, तो ये जो है सेकेंड माइलस्टोन था. फर्स्ट कौन सा था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909. Okay, you can watch the previous, if you watch the previous video you will come to know that which was the first one. So this is the second one. ठीक है, उसी का you can say, I will not say extension, but हाँ, इसमें काफ़ी ज़्यादा provisions ऐसे लिए गए थे कि जिसमें ये prove करता है कि हाँ, they are trying to transfer the power to the responsible government in India. Okay, so second milestone towards a completely responsible government in India. Okay, it was a lengthy and detailed document having 321 sections and 10 schedules. Okay, देखिए, अब ये जो एक्ट में कितने 321 सेक्शंस दिए गए थे और 10 शेड्यूल था. ओके, अभी हमारे प्रेजेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी 11-12 शेड्यूल्स हैं. ओके, जब स्टार्टिंग में बना था तो 8 ही था, फिर उसमें और अमेंडमेंट करके और बढ़ाया गया था. तो आप देख सकते हो कि 1935 एक्ट में इतने ज़्यादा शेड्यूल्स और इतने ज़्यादा section थे. You can think like how big this act was. Okay, so the key features of this act is, we can see here. First one, it provided for the establishment of an all India federation consisting of provinces and princely state as a unit. ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था कि जो पूरा हमारा ऑल इंडिया फेडरेशन है उसको उन्होंने क्या किया था, डिवाइड कर दिया था प्रोविंसेस में और प्रिंसली स्टेट यूनिट्स में. आपको पता है ना, इंडिया में काफ़ी ढेर सारे प्रिंसली स्टेट्स थे. जब इंडिपेंडेंस मिला था हमें, तो लगभग मोर देन 500 प्रिंसली स्टेट्स वर देयर. ठीक है, तो इसमें यहाँ पे इन्होंने प्रोविंसेस अलग थे और प्रिंसली स्टेट्स अलग थे, तो इन्होंने उसको स्टैब्लिश किया था विद दिस एक्ट. ठीक है, द एक्ट डिवाइडेड द पावर बिटवीन द सेंटर एंड यूनिट्स इन टर्म्स ऑफ 3 लिस्ट. ओके, देखिए, जैसे हमारे प्रेजेंट टाइम में 3 लिस्ट दिया हुआ एम लक्ष्मीकांत के लास्ट में दिया हुआ है. एनीवे मैं कवर करूँगा जब वहाँ तक पहुँचूँगा. तो अभी भी आप देखते हैं कि
सेंट्रल लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट होती है और कंकरेंट लिस्ट होती है, ठीक है। तो उसी तरीके से इस एक्ट में भी इन्होंने जो पावर्स हैं सेंटर के और यूनिट्स यहाँ पे जो प्रोविंसेस थे उनको बोल रहे हैं, उनको डिवाइड किया इन टर्म्स ऑफ दिस लिस्ट, लाइक फेडरल लिस्ट फॉर सेंटर्स जिसमें 59 आइटम्स थे, और प्रोविंशियल लिस्ट जिसमें हमारे 54 आइटम्स थे, और कंकरेंट लिस्ट था जो दोनों के लिए होता है। कंकरेंट में स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों लॉ बना सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी वैसा ही था। सो द कंकरेंट लिस्ट फॉर बोथ, इसमें 36 आइटम्स थे, ठीक है। इसमें दोनों लॉ बना सकते थे, सेंटर एंड यूनिट्स, मतलब वही स्टेट जो प्रोविंसेस थे उसको यूनिट्स बोल रहे हैं, ठीक है। हमारे अभी प्रेजेंट टाइम इट इज ए स्टेट, ओके, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने ये ऐसा भी किया था, रेजिडुअरी पावर वर गिवन टू द वाइसरॉय, ठीक है। ये सब होने के बाद भी कुछ रेजिडुअरी पावर था वो वाइसरॉय के पास ही था, ठीक है। उसको कुछ मतलब कुछ रात में सपना आ गया कि नहीं हमें ये करना है, तो वो ऐसा कर सकता था, ये चीज़ थी, ठीक है। देखिए ये लोग जब तक थे भले ही ऐसा दिखाते थे कि हाँ हम वेलबींग के लिए कर, लेकिन कुछ चीज़ें ये ऐसा पकड़ के रखते थे कि फिर से अगर उन्हें सप्रेस करना इंडियंस को तो वो कर सकते थे। ये रेजिडुअरी पावर वगैरह वैसा ही था, ठीक है। तो सब कुछ करते हुए भी अगर उनको मन करेगा कि मान लो सारे जितने भी पॉलिटिशियन सबको पकड़ के जेल में बंद कर दो, तो ये पावर वाइसरॉय को दे दिया, ठीक है। मतलब जस्ट आई एम गिविंग जस्ट एग्जांपल, कुछ भी उन्हें करना है, मतलब जो एक्चुअल कंट्रोल करने वाला पावर हमेशा इनके पास रहता था, इवन दो दे हैव गिवन दिस एक्ट, बट दे वर एक्चुअली रूलिंग अस, ओके। जैसा उनका मन करता था वैसे वो करते थे। हाउएवर द फेडरेशन नेवर केम इनटू बीइंग एज अ प्रिंसली स्टेट, डिड नॉट ज्वाइन इट, ठीक है। देखिए जो फेडरेशन था वो नेवर केम इनटू बिगिन, और जो प्रिंसली स्टेट्स थे वो लोग इसको ज्वाइन नहीं किए थे, ठीक है। ये ऐसे यूनिट्स में इन्होंने डिवाइड किया था, बट दे वर एक्चुअली दे हैव नॉट ज्वाइन, ठीक है। सो दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट, ओके। देयर इज लॉट ऑफ पॉइंट, वी विल सी वन बाय वन, ओके। सो द सेकंड पॉइंट, द important feature of this act is it abolished hierarchy in provinces and introduced provincial autonomy in its place. तो in the previous acts we have seen that उन्होंने डायरकी लेके आ गया था, डुअल रूल जिसको बोलते हैं ना, तो उसको उन्होंने एबोलिस्ट कर दिया इस एक्ट के थ्रू, जो कि प्रोविंसेस में था, और जो उसमें उसके थ्रू अब फिर इन्होंने क्या किया, जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी थी वो चीज़ इन्होंने इस्टेब्लिश कर दी। जैसे आप देख सकते हैं इससे पीछे वाले में कि वो एक लिस्ट बना दी, फिर वो उन पे लॉ वगैरह बना सकते थे, इससे पहले ऐसा नहीं था, ठीक है। The provinces were allowed to act as autonomous unit for administration of their defined sphere, ठीक है। तो जैसे अभी स्टेट है ना, हमारे यूपी है, बिहार है, एमपी है, तो उसी तरीके से जो भी प्रोविंसेस उस समय हुआ करती थी उसको उन्होंने ऑटोनॉमी दे दी, और वो उसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन थे अपने हिसाब से कर सकते थे, ठीक है। स्फेयर मतलब वो एरिया की बात कर रहे हैं। Moreover, the act introduced responsible government in provinces. That is, the governor was required to act with the advice of ministers responsible to the provincial legislature. This came into effect in 1937 and was discontinued in 1939. देखिए मैं अभी प्रेजेंट टाइम से इस वजह से बोलता जा रहा हूँ क्योंकि अभी प्रेजेंट में वो सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा लिंक करने में ईजी होगा, ठीक है, याद करने में ईजी होगा, ओके। तो जैसे देखिए अभी गवर्नर का रोल क्या होता है, किसी भी हर स्टेट में गवर्नर अपॉइंट होता है, वो जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, जो स्टेट लेजिस्लेचर होता है उसके उनके एड एंड एडवाइस पे काम करते हैं। तो उसी तरीके से इन्होंने ऐसा किया था, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट प्रोविंसेस, जो भी उन्होंने प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी दी थी उसको गवर्नर्स भी अपॉइंट किया, और वो गवर्नर जो है दे वर एक्चुअली एक्टिंग एज एक्ट विद द एडवाइस ऑफ मिनिस्टर मतलब वही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो उस टाइम पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वगैरह शायद नहीं होता था, जो भी उनके रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर्स होते थे उनके एडवाइस पे काम करते थे, ठीक है। ये चीज़ उन्होंने ये मतलब लागू कब हुआ 1937 में, और
और ये चला कब तक, 1939 तक। आपको पता है इसमें 1939 में जो उस समय गवर्नमेंट थी वो उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था। क्यों किया था वो हम लोग देखेंगे बाद में, वो बता दे रहा हूँ। इस वजह से कर दिया था क्योंकि वर्ल्ड वॉर उस समय चल रहा था, वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, तो उसमें इंडिया को जो इंडियन गवर्नमेंट, एक गवर्नमेंट थी, उन लोगों से पूछा नहीं, ठीक है, और डायरेक्टली इंडिया को पार्टी बना दिया था वर्ल्ड वॉर 2 में। तो इस वजह से ना जो इंडिया में गवर्नमेंट थी वो लोग सोच रहे थे कि यार हम लोग इतना अच्छा कर रहे हैं और ये लोग हम लोगों को पूछना भी ज़रूरत नहीं समझे, मतलब हमें ही लड़ने के लिए भेज रहे हैं बट हमसे पूछा तक नहीं। तो उस चीज़ की वजह से उन लोगों ने रिज़ाइन कर दिया था। तो इस वजह से ये 1939 है, ठीक है। तो ये तब तक चला, जब तक गवर्नमेंट थी तब तक चला, जब रिज़ाइन कर दिया तो फिर कोई मतलब ही नहीं था। ओके, सो दिस इज द मीनिंग। नेक्स्ट पॉइंट, ओके, इट प्रोवाइडेड फॉर द एडॉप्शन ऑफ डायरकी एट सेंटर। लेकिन सेंटर पे देखिए प्रोविंसेस में ख़त्म कर दिया, बट जो डायरकी का एडॉप्शन था वो सेंटर में था। कंसिक्वेंटली द फेडरल सब्जेक्ट वर डिवाइडेड इनटू रिजर्व सब्जेक्ट एंड ट्रांसपोर्ट सब्जेक्ट, ठीक है। और जो फेडरल सब्जेक्ट्स था वो डिवाइड हो गया रिजर्व सब्जेक्ट एंड ट्रांसपोर्ट सब्जेक्ट में, ठीक है। हाउ एवर दिस प्रोविजन ऑफ एक्ट डिड नॉट केम इनटू ऑपरेशन एट ऑल, ठीक है। इन्होंने ऐसा किया कि जो फेडरल आई मीन सेंटर में डायरकी की अडॉप्शन किया और जो फेडरल सब्जेक्ट्स थे उसको उन्होंने रिवर्स रिजर्व सब्जेक्ट एंड ट्रांसपोर्ट सब्जेक्ट में किया, बट ये चीज़ वो ऑपरेशन में नहीं आया था, ठीक है। ऐसा इन्होंने बोला था बट इट वाज नॉट केम इनटू इफेक्ट। फोर्थ पॉइंट, इट इंट्रोड्यूस बाई कैमरलिज्म इन 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस, ठीक है। तो उस समय 11 टोटल प्रोविंसेस, जिसमें से 6 में इन्होंने बाई कैमरलिज्म किया था। बाई कैमरलिज्म मतलब वही है कि अपर हाउस लोअर हाउस इस टाइप की चीज़ें होंगी। जैसे अभी हमारा जैसे लोकसभा राज्यसभा होता है सेंटर में और स्टेट में भी होता है, जैसे यूपी में लेजिस्लेटिव काउंसिल है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, उस तरीके से। तो दैट इज नथिंग बट इज द बाइकैमरलिज्म, ठीक है, अपर हाउस लोअर हाउस, ठीक है। तो 6 में आउट ऑफ 11 6 में इन्होंने बाइकैमरलिज्म इंट्रोड्यूस किया था। वो कौन कौन से 6 लेजिस्लेचर थे? दैट वाज बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम एंड यूनाइटेड प्रोविंस, ठीक है। वर मेड बाई कैमरल consisting of legislative council that I have already told you, which is nothing but is the upper house, and legislative assembly that is nothing but is the lower house, ठीक है। तो जो काउंसिल लेजिस्लेटिव काउंसिल था वो अपर हाउस था एंड जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी वो लोअर हाउस थी, ठीक है, जो कि अभी भी वैसा ही है। हाउएवर मेनी रेस्ट्रिक्शन वर प्लेस्ड ऑन देम, बट ऐसा किया था उन्होंने, लेकिन काफ़ी रेस्ट्रिक्शन भी उन्होंने लगा के रखा हुआ था। मैंने बोला ना कि वो सब कुछ करते थे लेकिन एक चीज़ पकड़ के रखते थे कि आपको दबाना है, वो चीज़ उनके ही हाथ में था कुछ भी करने के बाद, ठीक है। देखिए अभी हम 4 पॉइंट देखें तो you can see that lot of things which is given in the Government of India Act 1935 that are very much similar with the present constitution itself. Okay, so that's why we can say that there is a lot of the bigger portion of present time our constitution part, many parts has been taken from the Government of India Act 1935. Okay, so that's why this act is very very important. Okay, so the 5th point, it further extended the principle of communal representation, ठीक है। जैसे आप हम लोग कम्युनल अवार्ड वगैरह देखा था पिछले स्लाइड्स में, पिछले पार्ट्स में। ओके, सो दे हैव एक्चुअली दैट कम्युनल रिप्रेजेंटेशन दे हैव एक्सटेंडेड, ठीक है, बाई प्रोवाइडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस, ठीक है। जैसे हम लोगों ने मुस्लिम सिख सबको देखा था, तो इन्होंने इस एक्ट के थ्रू इसको जो डिप्रेस्ड क्लासेस था, डिफरेंट क्लासेस लाइक शेड्यूल कास्ट, वुमेन एंड लेबर्स, तो इन लोगों के लिए भी इन्होंने एक्सटेंड किया था, ठीक है। जैसा मैंने आई थिंक क्वेश्चंस भी देखे हुए हैं, तो उसमें ऐसा पूछा गया कि ये किस में एक्सटेंड किया गया था, किस एक्ट में एक्सटेंड किया गया, सो इट वाज एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ओके, नेक्स्ट पॉइंट 6 पॉइंट इज इट अबॉलिश द काउंसिल ऑफ इंडिया established by Government of India Act 1858, ठीक है। तो 1858 में काउंसिल ऑफ इंडिया बनाया गया था, उसको इन्होंने अबॉलिश कर दिया। द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वाज प्रोवाइडेड विद द
टीम ऑफ एडवाइजर। और देखिए हम लोग इससे पिछले वाले एक्ट में देखे थे कि इन्होंने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया बनाया था, उसको वो प्रोवाइडेड, ठीक है, विद उसको दिया था बट विद द टीम ऑफ एडवाइजर, ठीक है, उस उनको वो चलेगा, वो रहेगा, बट इट विल एक्ट विद द टीम ऑफ एडवाइजर। जो एडवाइजर बोलेंगे उस हिसाब से इनको करना होगा, मतलब जो भी काम है वो करना होगा। ओके, 7th पॉइंट, इट एक्सटेंडेड फ्रेंचाइज, ओके, अबाउट 10% ऑफ टोटल पॉपुलेशन गॉट द वोटिंग राइट। देखिए अब इन्होंने क्या किया था, 10% लोगों को, इंडिया के 10% लोगों को वोटिंग राइट दिया था, सबको नहीं दिया था। इसमें भी आप ये समझ लो कि जो उस समय के वेल्दी लोग थे, रिच लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, उन लोगों को ही दिया था, सबको नहीं दिया था, बट या दे हैव गिवन, ठीक है। बट हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने जब बनाया कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसमें सबको दिया गया था, ओके, जो भी 18 ईयर के ऊपर थे, 18 के ऊपर थे, सब लोग वोट कर सकते थे, ऐसा उन्होंने, आई थिंक 21 था उस टाइम पे, फिर बाद में 18 किया गया था। नो, आई थिंक इट वाज 18 ओनली, ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा जो भी है। मतलब हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो सबको राइट दिया गया था, बट इन्होंने इस एक्ट के थ्रू 10% लोगों को ही दिया था, ठीक है। 8th पॉइंट, देख इसमें भी वही चीज़ है कि जो रिच लोग हैं वही लोग जाके असेंबली में बैठेंगे, वही लोग चुनाव लड़ेंगे, वही लोग उन्हीं जैसे लोग जैसे उनको वोट करेंगे, फिर तो ये सब मतलब वो नहीं चाहते थे कि जो लोग गरीब तबका है वो जाके वहाँ पे असेंबली वगैरह में बैठे, ये सब चीज़ें थी। 8th पॉइंट, इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू कंट्रोल द करेंसी एंड क्रेडिट ऑफ द कंट्री। देखिए हम लोग कई जगहों पे पढ़ चुके हैं, मुझे नहीं लगता इसको बताने की ज़रूरत है, आप इकोनॉमिक्स थोड़ा बहुत भी पढ़े होंगे। तो आरबीआई आरबीआई एक्ट 1935, आरबीआई एक्ट 1935 हम लोग कई बार पढ़ते हैं, तो ये कुछ नहीं, ये इसी एक्ट से बना हुआ है, ठीक है। यही चीज़ को आगे कंटिन्यू किया गया था, ऐसा नहीं था कि कुछ अलग से फिर दूसरा बैंक बनाया गया था, ये वो, या बैंक का नाम अलग था, बाद में तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से, आई थिंक फेडरल बैंक ऑफ इंडिया ऐसा कुछ नाम रखा गया था, बट इन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आई थिंक नहीं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही नाम था इसका, ठीक है। तो ये 1935 में ही इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। इसी चीज़ को कंटिन्यू किया गया था बाद में, और क्यों किया गया था, टू कंट्रोल करेंसी एंड क्रेडिट ऑफ द कंट्री, ठीक। स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मुझे नहीं लगता कि इसमें ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत है, ओके। देखिए जो भी मैंने रेड किया है वो चीज़ आप याद रखिएगा, ये सारे इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं जो दैट यू हैव टू रिमेंबर, ओके। आई थिंक नेक्स्ट एंड लास्ट 2 पॉइंट्स, it provided for the establishment of not only the Federal Public Service Commission but also a Provincial Public Service Commission and Joint Public Service Commission for 2 or more provinces। देखिए इन्होंने जो सिविल सर्वेंट थे उनके रिक्रूटमेंट के लिए उन्होंने नॉट ओनली फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया था, जो अभी हमारे यूपीएससी है, ठीक है, बट उन्होंने प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन भी बनाया, जो अभी आज के टाइम में स्टेट पब्लिक सर्विसेज बोलते हैं, जैसे यूपी में यूपीपीएससी होता है, यूपीपीएससी है, या फिर एमपी में एमपीपीएससी, ठीक है, हर स्टेट में झारखंड में है। सो दैट इज नथिंग बट इज द प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन एंड द फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन इज द यूपीएससी। बट उन्होंने नॉट ओनली दिस, दे हैव ऑल्सो मेड जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर 2 or more प्रोविंसेस। जैसे मान लो कोई 2 स्टेट को मिला के भी उन्होंने एक बनाया था, that is known as joint public service commission। जैसे मान लो 2-3 स्टेट मिल के फिर करें, फिर आई थिंक प्रेजेंट टाइम में ऐसा नहीं है, ठीक है, बट उन्होंने उस टाइम पे इस एक्ट के थ्रू किया था, जैसे 2-3 स्टेट मिल के एक कमीशन हो और सिविल सर्वेंट को रिक्रूट करें, दे कैन वर्क इन those states। But as of now we don't have this joint public service commission, but we do have these two, like Federal Public Service Commission, which is UPSC, and Provincial Public Service Commission is the state PSCs, okay। And the last point is it provided for the establishment of federal court, which was set up in 1937, और also इन्होंने फेडरल कोर्ट भी बनाया, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं हो रही यहाँ पे, फेडरल कोर्ट की बात हो रही है। इट हैज़ बीन ऑल्सो एस्टैब्लिश्ड
ओके एंड इट वाज सेट अप इन 1937। इस एक्ट में बनाया गया था, बट कई बार आपसे ईयर पूछ लेगा किस ईयर में। सो इट वाज सेट अप, ठीक है, 1935 में इसको स्टैब्लिश किया गया था, बट इट वाज सेट अप इन 1937। सो प्लीज रिमेंबर it has been set up in 1937. Okay, so these were the 10 very important point with respect to Government of India Act 1935. We have left with one more act, that is nothing but is the Indian Independence Act, ठीक है, उसके थ्रू हम लोग इंडिया को आज़ाद कराएंगे नेक्स्ट पार्ट में। और उसके बाद एक और पार्ट में बनाऊंगा छोटा सा, देयर विल सी द इंटरिम गवर्नमेंट जो भी हमारी बनी थी, और जो हमारा 1947 में जो इंटरिम गवर्नमेंट के बाद जो लोग थे, कौन कौन सा पोर्टफोलियो सब लोगों को मिला था, उसके लिए हम लोग दो और पार्ट में करेंगे। और ये सारा ये जो पूरा चैप्टर उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। देन विल गो फॉर द नेक्स्ट चैप्टर। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड वन मोर थिंग, आई वुड लाइक टू want your comments so that like what extra you want, ठीक है, क्योंकि मेरा जो इसमें ये है कि मैं इसमें, जैसे आप YouTube में देखते हो कि लोग काफ़ी वो एनिमेशन डालते हैं और अलग अलग फ़ोटोज़ डालेंगे, देखिए उन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। अल्टीमेट चीज़ जो जैसा बुक पढ़ते तो बुक में टैक्स दिया होता है, ओके, अल्टीमेटली आपको लैंड करना है टैक्स में ही, ठीक है। मैं भी चाहूँ तो वो सब चीज़ें कर सकता हूँ, बट इट्स लाइक देखने में वो अच्छा लगता है, बट एक्चुअली दैट इज़ नॉट यूजफुल, ठीक है। आप थोड़ी देर के लिए अट्रैक्ट हो गए, देखिए पढ़ने का जो एक्चुअल तरीका होता है वो बेसिक ही होता है, बुक उठा के पढ़ना है। अल्टीमेटली आप कुछ भी देख लो, कुछ भी कर लो, बुक उठा के पढ़ना ही है, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बुक पढ़नी ही ना पड़े, ठीक है। ऐसे सारे सब्जेक्ट में आएगा। मैं फिर से पहले भी बोल चुका हूँ कि थोड़ा आपको बोरिंग लग सकता है, बट अगर आप स्टिक रहोगे, थोड़ा बोर होके अगर आप स्टिक रहोगे, आई कैन डैम से ओके, आई एम टेलिंग यू, आपको दोबारा बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं एक एक जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उसको मैं रेड कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ, सो दैट आप कहीं भी आप जब देख रहे हो लेक्चर तो आप उस रेड कलर को आप भी अगर नोट करते जाते हो तो आपकी अच्छी खासी नोट्स बन जाएगी। और एग्ज़ाम के टाइम में 2-4 घंटे पहले इफ़ यू जस्ट रिवाइजिंग दैट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स एट द रेड कलर बोल्ड पॉइंट, इट्स इनफ फॉर वट एवर एग्जाम यू आर टारगेटिंग। ओके, सो आई विल बी हैप्पी टू गेट योर कमेंट्स like what extra you want in these lectures, so that like extra means like if you want some questions also with this, then I can add. But anyway, I have already playlist for the previous year questions, so you can follow those playlists as well. But apart from that, if you want anything else, you please let me know. I will try to add those things in the lectures. Thank you for watching.